welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is section 22 of the Indian Contract Act 1872, which deals with mistake. Guys, I've already made videos on section 20 and 21. Before watching this video, please go and watch those videos because वो videos भी mistake chapter के साथ ही related हैं. I've told you beforehand कि mistake word has not been defined anywhere in the Indian Contract Act 1872. इसको define कहीं नहीं किया गया है, so we do not have a legal meaning of mistake. इसीलिए we take a general and common meaning of mistake, which is nothing more than a misbelief. Mistake is an error. It's an erroneous belief, so it's a misbelief. तो अगर मैं कहूँ कि जब दो लोग, when there are two people who enter into a contract with each other, उन लोगों को लगता है कि something is true in front of them, but in reality it is not true. It means उनको एक common misbelief है, एक erroneous belief है, एक ऐसा belief which is erroneous. It means उनको लगता वो सच है, but वो सच नहीं होता. It means mistake is nothing but an error. It's an erroneous belief, or you can call it as misbelief. तो इसको हम बोलते हैं mistake. So mistake मतलब when two parties are contracting and they have an erroneous belief at contracting. When they are contracting with each other, उस टाइम पे उन्हें कोई erroneous belief, एक misbelief लगता है जो सच नहीं होता, उसको हम mistake बोलते हैं. Guys, हम जब section 14 रीड कर रहे थे free consent, उसके ही कुछ important essentials हैं और उसका ये last essential है which is mistake. Coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. इन चारों पे मैं already videos बना चुकी हूँ. And fifth important point is the mistake. I've told you beforehand, before beginning, कि हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे. मिस्टेक के साथ थ्री सेक्शंस रिलेटेड हैं, सेक्शन 20, 21 एंड 22. प्रीवियस 2 सेक्शंस हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, और एल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. एंड गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 22 एंड आफ्टर दिस हमारा सेक्शन 14 है फ्री कंसेंट. उसके जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है वो खत्म हो जाएंगे. अब सेक्शन 22 डील्स विद यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. आई टोल्ड यू कि मिस्टेक को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. एंड इफ यू आर इन टच विद माय वीडियोस, आपको पता होगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन 21 में. मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरीके का होता है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. Bilateral mistake of fact already section 20 में डिस्कस हो चुका है, and today is the day we are going to discuss unilateral mistake of fact which is under section 22. तो mistake chapter का overview right from the beginning में देती आ रही हूँ, right from section 20, 21 and in this video also I've told you कि इसको हम किस तरीके से study करेंगे. Today we are going to discuss unilateral contract. I'm so sorry, unilateral mistake of fact. अभी जो unilateral mistake of fact होती है ना, it is further divided into few parts, और उन सब के एक हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे. आई हैव ओनली drawn diagrammatic representation of those case laws so as to make it easy for you to understand. But guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, you find it easy to grab and learn concepts, so please guys like all my videos and let me know in the comment section. So guys, let's get started. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलेटरल एंड देन मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइडेड. जैसे हमने बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट को देखा, दैट इज टू साइडेड व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू सर्टेन फैक्ट्स. उसी तरीके से यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है? इट्स अ यूनिलेटरल, इट मीन्स इट इज वन साइडेड, जिसका मतलब है कि बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट at mistake as to fact, but only a single party is at mistake. इस चीज़ को मैं समझाऊंगी beautifully with a case law, but इसके पहले आपको इसका मतलब समझना ज़रूरी है. There are 2 people, जब दोनों में से सिर्फ एक पार्टी is at mistake, दोनों की गलती नहीं है, एक पार्टी को जो लगता है वो वही लगता है जो रियलिटी होती है, बट दूसरी पार्टी इज एट मिस्टेक, वो गलती करती है. क्योंकि ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है तो ये परफेक्टली वैलिड होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. आई हैव टोल्ड यू, कंफ्यूज नहीं होना. बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि दोनों पार्टीज आर एट मिस्टेक और उनका कंसेंसस नहीं बन पाता, कंसेंट नहीं बन पाता और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाता. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है? सिंस ओनली अ सिंगल पार्टी इज एट मिस्टेक, तो अगर आपकी गलती है तो यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग. आपकी गलती है, दूसरी पार्टी इज राइट, बिल्कुल सही है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की थी वही रियलिटी में उसको लगा और वही रियलिटी में हैं. बट जिस दूसरे पार्टी को गलती लगी वो यूनिलेटरल लगी, सिर्फ एक इंसान की गलती थी, दूसरी की नहीं थी. सो यहाँ पे प्रिंसिपल आती है, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग. सिर्फ आपकी गलती है एज टू सम फैक्ट,
यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट इज नथिंग बट अ सब्जेक्ट मैटर, और वो सब्जेक्ट मैटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है that it goes directly into the roots of the contract, और अगर उस सब्जेक्ट मैटर में, उस फैक्ट में गलती हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती है, वो रूट्स के तरीके से काम करता है, जैसे एक ट्री की रूट्स होती है उस तरीके से वो सब्जेक्ट मैटर, वो फैक्ट काम करता है। एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट सब्जेक्ट मैटर, सो इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड, सिर्फ एक पार्टी की गलती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एज इन द केस ऑफ बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट परफेक्टली वैलिड, इट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल को हम बोलते हैं परफेक्टली वैलिड। अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे विद अ केस लॉ विच इज अकेकल अंगाहल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। इस केस लॉ में क्या हुआ था गाइस, देयर वाज अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई फॉर सेल, फॉर ऑक्शन सेल ऑफ फिशरी राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फिशरी राइट्स थे बट वो उनको बेचना चाहती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर की जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें बहुत प्रॉपरली लिखवाया था कि जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको हम ये राइट्स को, फिशरी राइट्स को बेच देंगे, प्रोवाइडेड 3 साल के लिए बेचेंगे, और जो हाईएस्ट बिड होगी वो सिर्फ पहले साल के लिए होगी, और वो बिड आपको कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स के लिए देनी है। तो अब जो ये प्लेंटिफ थे, ये इन्होंने क्या किया, हाईएस्ट बिड लगाई 40,000 रुपीज़ की। अब इनको लगा कि ये 40,000 रुपीज़ एक ही बार में देने हैं फॉर 3 इयर्स, होल सोल अमाउंट सिर्फ 40,000 है, तो उन्होंने ये सोच के हाईएस्ट बिड को लगा दिया और उनके बिड को एक्सेप्टेंस पे मिल गई बाय द फॉल ऑफ हैमर। बट व्हाट हैपेंड इज, जब 1 साल निकल गया, 2nd एंड 3rd ईयर आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें 40,000 रुपीज़ दो। बट यहाँ पे जो प्लेंटिफ थे वो कोर्ट में जाते हैं एंड ही स्यूड यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दे आर आस्किंग मी, और यहाँ पे हमारे बीच में कोई मिस्टेक हुई है, इसीलिए आई एम नॉट बाउंड टू गिव देम 40,000 रुपीज़ फॉर दिस एंड द कमिंग ईयर, 2nd एंड 3rd ईयर के लिए मैं नहीं दूंगा, वो 40,000 तीनों साल के लिए थे। बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, फैक्ट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के फिशरी राइट्स इज द सब्जेक्ट मैटर। अब इसी को लेके आपकी मिस्टेक हो चुकी है, बट इट इज़ अ मिस्टेक विच इज़ यूनिलेटरल एंड नॉट बायलेटरल। बायलेटरल में दोनों पार्टीज की गलती होती है, उनका कंसेंसस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट एट ऑल एट फॉल्ट, उसकी तो कोई गलती ही नहीं, बिकॉज जो एडवर्टीजमेंट में लिखा वही उनको लगा और वही सबको लगा। बट यहाँ पे गलती सिर्फ किसकी है, हाईएस्ट बिडर की, प्लेंटिफ की खुद की गलती है, एंड यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, किसी भी बंदे की ऑप्शन पे वो वॉइडेबल नहीं होती, बट इट इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि आपकी खुद की गलती है, आपकी गलती का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते और उसको अवॉइडेबल नहीं कर सकते, इट इज परफेक्टली वैलिड। सो गाइज आपको समझ आए कि जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है एज अ जनरल रूल इट इज़ नॉट वॉइडेबल मीन्स परफेक्टली वैलिड, और ये चीज़ आपको इस केस लॉ ने समझाई। बट हम इसकी कुछ एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को यूनिलेटरल मिस्टेक लगी एज टू सर्टन फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कई बार व्हाट हैपेंस इज कि वहाँ पे इट इज मे बी void and voidable, बट अभी हमने क्या डिस्कस किया, एज अ जनरल रूल इट इज नॉट voidable, इट मीन्स नॉट voidable इज इक्वल टू परफेक्टली वैलिड। जो चीज़ परफेक्टली वैलिड होती है उसको हम बोलते हैं इट इज नॉट voidable, और ये जनरल रूल है इन केस ऑफ यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट हम कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब अब क्या है कि यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के बावजूद भी वो वैलिड नहीं होगी, इट माइट बी वॉइड एंड वॉइडेबल इन सम केसेस, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बहुत इजी, अगर किसी 2 एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एक्सेप्शन ये रहती है कि अगर किसी इंसान के साथ फ्रॉड कमिट होता है, अब फ्रॉड कमिट किसी के साथ आपने किया, इसके हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल यहीं पे मैंने केस लॉ भी लिखा है, हम यहाँ पे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी इंसान के साथ फ्रॉड कमिट होता है तो वो क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। हम सेक्शन 17 में, सेक्शन 19 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अगर किसी इंसान के साथ फ्रॉड कमिट होता है, चाहे वो यूनिलेटरल मिस्टेक ही क्यों ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो होती भी यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वो वॉइडेबल होगा, लेकिन हमने जनरल रूल क्या देखा कि इट इज नॉट वॉइडेबल बट परफेक्टली वैलिड। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, और पहली एक्सेप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। जहाँ पे एक इंसान के साथ फ्रॉड हुआ वो यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल।
अब इसके लिए विल बी डिस्कसिंग अ केस लॉ बाद में डिस्कस करते हैं। अब सेकंड एक्सेप्शन हमारे पास रहती है, कॉमन केस लॉ है इसलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सेकंड एक्सेप्शन हमारे पास रहती है जहां पे बेशक यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो बट वहां पे कंसेंसस नहीं बन पाता। अब वहाँ पे कंसेंसस नहीं बनेगा तो क्या होगा, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा एंड नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन एवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाती है, कंसेंसस नहीं बन पाता। अब वो कंसेंसस क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक वन साइडेड होती है। अब वो मिस्टेक को हम अंडर 3 हेड्स स्टडी करते हैं। वो मिस्टेक किस तरीके से होती है, एक रहती है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी of the parties, second is the mistake about the subject matter and third is the mistake about the nature of transaction. So guys, there is no need to worry। हमने अभी तक unilateral mistake of fact का meaning देखा with a case law। उसके बाद मैंने आपको इसका जनरल रूल बताया। जनरल रूल की मैंने 2 एक्सेप्शंस बताई हैं। पहली एक्सेप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड विच इज इक्वल टू वॉइडेबल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे फ्रॉड होता है, चाहे वो यूनिलेटरल हो बायलेटरल हो, वो हमेशा वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो कॉज्ड बाय फ्रॉड। नहीं समझ आ रहा, आप मेरी वीडियो देखो ऑन सेक्शन 19, सेक्शन 17 सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी हैं। और उसके बाद दूसरी एक्सेप्शन मैंने बताई जहाँ पे मिस्टेक हुई, चाहे वो यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट दैट मिस्टेक इज क्योंकि वहाँ पे कंसेंसस नहीं बना, कंसेंसस एट आइडम नहीं हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुए, उसको हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सेकंड एक्सेप्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी भी हो सकती है, मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। तो 3 तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्सेप्शन, मतलब सेकंड एक्सेप्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, विच इज यू हैव अ मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज की आइडेंटिटी को समझ नहीं पाते, अब उसको हम केस लॉज के साथ डिस्कस करेंगे। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी प्रॉपरली। इसमें क्या रहता है कि पार्टीज में बी एट डिफरेंट प्लेसेस एंड पार्टीज में बी एट सेम प्लेस। अब आप एक इंसान को नहीं समझ पाते क्योंकि आप कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी इंसान के साथ जिसको आपने कभी नहीं देखा। इट मीन्स यू एंड द अदर पर्सन विद हुम यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, बहुत बार नॉर्मली ऐसा होता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो बट यू आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, आपको नहीं पता वो सामने वाला कौन है, और उस कारण क्या हो जाती है, सिंस यू आर एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है। आप उस इंसान को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। और दूसरा, कई बार पार्टीज आर एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे होते हैं, दे आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर बट फिर भी वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। सो गाइज लेट मी टेल यू, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी व्हेन पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड व्हेन पार्टीज आर एट सेम प्लेस। जब वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती है उसको हम मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन व्हेन पार्टीज आर एट सेम प्लेस और कन्फ्रंट कर रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, डिस्पाइट दैट फैक्ट आपको गलती लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट। सो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी एंड मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट। तो अगर मैं आपको सबसे पहला केस लॉ डिस्कस करते हैं विच इज जेम्स कुंडी वर्सेस थॉमस लिंड से 1877। गाइज इस केस लॉ को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने सेक्शन 13 कवर किया था, कंसेंट। उसमें कंसेंट की डेफिनेशन देखी थी हमने, एक एग्जाम्पल देखी थी, और ये वाला केस लॉ हमने डिस्कस किया था। वही यहाँ पे आज मैं रिपीट करूंगी बिकॉज इट इज ऑफ रेलेवेंस इन दिस चैप्टर मिस्टेक, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर स्टडीइंग यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे क्या है, पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पे पार्टीज डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, यहाँ पे भी फ्रॉड कमिट हुआ, यहाँ पे भी। इसीलिए जब मैंने आपको इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन बताई थी कि पार्टीज के साथ जब फ्रॉड होता है तो वो वॉइडेबल होती है, उसमें आप इन दोनों में से, बेसिकली दोनों नहीं, हम ये वाला केस लॉ लिख सकते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास केस लॉ आता है व्हेन पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस। आई होप आपको पता होगा इसके फैक्ट्स बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इसमें कहता है कि देयर वाज अ पर्सन जेम्स कुंडी, जेम्स कुंडी नाम का एक इंसान था। व्हाट हैपेंड इज कि देयर वाज अ पर्सन नेम्ड बी, मिस्टर बी ब्लैंकेरॉन। यहाँ पे क्या, इसका नाम था ब्लैंकर्न, हिज नेम इज ब्लैंकर्न। ब्लैंकर्न ने क्या किया, जेम्स कुंडी को एक कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी, एक लेटर भेजा, और उसने कहा कि मुझे आपसे हैंडकरचिप्स खरीदने हैं। बेसिकली जो कुंडी थे, जेम्स कुंडी, ही वॉज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडकरचिप्स, वो हैंकीज बनाते थे। तो ये जो ब्लैंकर्न थे, ब्लैंकर्न ने एक ऑफर भेजा, और ऑफर में उसने ये लिखा, ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ रिप्यूटेड फर्म ब्लैंकेरॉन एंड कंपनी। तो इट मीन्स ब्लैंकर्न ने, मिस्टर बी ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया टू बी अ फर्म, टू बी अ कंपनी विच इज ब्लैंकेरॉन एंड कंपनी। तो ब्लैंकर्न ने अपने आप को ब्लैंकेरॉन एंड कंपनी दिखाया इस इंसान को, कुंडी को, और उसको कॉरेस्पॉन्डेंस भेजा, ऑफर भेजा कि मुझे हैंडकरचिप्स चाहिए। अब इस जो कुंडी है इसको लगा कि ब्लैंकेरॉन एंड कंपनी इज अ वेरी रिप्यूटेड फर्म,
और हमारा बिजनेस चलता है उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया, बिलीविंग द अदर पर्सन टू बी ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी, उन्होंने क्या किया, जेम्स कुंडी ने हैंडकरचिप्स पहुंचा दिए। एंड इंटरेस्टिंगली जो इनका एड्रेस था ब्लैंकर्न का और ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी का, इनका एड्रेस भी सिमिलर था, वुड स्ट्रीट, सिर्फ थोड़ा सा इनके ऑफिस नंबर में फ़र्क था, दोनों वुड स्ट्रीट में रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इनके पास हैंकरचिप्स आए, इन्होंने उस हैंकरचिप्स की पेमेंट नहीं करी टू जेम्स कुंडी, इंस्टेड उन्होंने क्या किया, इन हैंकरचिप्स को लिया ब्लैंकर्न ने और आगे किसको बेच दिया, लिंडसे को। अब लिंडसे यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी है, तो उन्होंने किसको किया, थॉमस लिंडसे को ये आगे हैंकरचिप्स बेच दिए। सो दिस लिंडसे इज द थर्ड पार्टी हियर एंड दिस पर्सन has bought these handkerchiefs in good faith. Guys, good faith का मतलब होता है innocently, जब आपको नहीं पता कि ऊपर वाले बंदे ने, यानी कि इस इंसान ने फ्रॉड करके किसी से कोई चीज़ ली है, आपको नहीं पता, यू वर एक्टिंग इन गुड फेथ एंड इनोसेंटली, तो उसी तरीके से लिंडसे ने उसको खरीद लिया। अब यहाँ पे जेम्स कुंडी ने क्या किया, थॉमस लिंडसे को स्यू कर दिया, इनके ऊपर केस फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स। उन्होंने कहा कि हमें हमारी गुड्स को रिकवर करो, क्योंकि यहाँ से दिस पर्सन भी, ब्लैंकर्न ने क्या किया था, ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी, और पैसा भी नहीं दिया। तो यहाँ पे कुंडी ने लिंडसे को स्यू किया। अब देखा जाए तो लिंडसे की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बिकॉज ही वॉज अ थर्ड पार्टी एंड ही बॉट एवरीथिंग फॉर कंसिडरेशन, पैसे दे के उन्होंने इन गुड फेथ चीज़ को खरीदा था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक हो गई, आपको लगा कोई और बट निकला कोई और। सो देयर इज अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस, यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग ईच अदर, आप डिफरेंट प्लेसेस में हो। तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी व्हेन पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो ये इंसान है लिंडसे, ही हैज़ टू रिकवर दीज गुड्स बैक टू दी कुंडी पर्सन, इन मैन्युफैक्चरर्स को उनके गुड्स को वापस करना है। अब इसका रीज़न क्या है गाइज, इसका रीज़न ये है कि पार्टीज का कंसेंसस एडाइडम नहीं बन पाया, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पाया। मीटिंग ऑफ माइंड्स क्यों नहीं हो पाया, इसका रीज़न क्या है कि इस इंसान को तो पता था कि आई एम डीलिंग विद कुंडी, बट कुंडी को नहीं पता था कि आई एम डीलिंग विद दिस पर्सन ब्लैंकर्न। इंस्टेड उसको क्या लगा कि मेरी जो डीलिंग है इट इज़ विद दिस पर्सन ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी, इस कंपनी के साथ मेरी डीलिंग हो रही है। तो ये क्या हुआ, इट इज़ नॉट अ बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट इज़ अ यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सिर्फ एक पार्टी को गलती लगी। जब यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो वहाँ पे एज अ जनरल रूल क्या होता है कि इट इज़ नॉट वॉइडेबल बट परफेक्टली वैलिड, द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड। बट हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टीज के साथ फ्रॉड हुआ वो वॉइडेबल होती है, और दूसरी एक्सेप्शन जहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाता, यहाँ पे वही चीज़ हुआ, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्यों, सिर्फ इस इंसान को गलती लगी, बट क्यों लगी, क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पाया, इस इंसान का और इस इंसान का माइंड्स जो है वो मीट नहीं हो पाए। इसको तो पता था कि आई एम डीलिंग विद कुंडी, बट कुंडी को नहीं पता था कि ही वॉज डीलिंग विद ब्लैंकर्न इन रियलिटी, उसे नहीं पता। तो इनके मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुए। जब माइंड्स मीट नहीं करते, कंसेंसस एडाइडम नहीं बनता, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सेक्शन 13 क्लियरली बोलते हैं कि जहाँ पे कंसेंसस नहीं बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, इट विल बी वॉइड, और वो वॉइड होगा और कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि इस इंसान के पास टाइटल नहीं आया, गुड्स इसके पास नहीं आई, तो ये गुड्स आगे भी बेच नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। यहाँ पे क्या किया आपने, यू हैव मिसरिप्रेजेंटेड योरसेल्फ, कंसेंसस ही नहीं बन पाया पार्टीज का। तो जब इसके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई ब्लैंकर्न के पास, तो ब्लैंकर्न आगे ऑनरशिप नहीं दे सकता। जिस चीज़ के ऑनर आप नहीं हो वो चीज़ आप आगे किसी को नहीं दे सकते। तो जब ये ऑनर नहीं बना तो लिंडसे भी ऑनर नहीं बन सकता, बेशक उसने गुड फेथ में खरीदा। बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रिकवर दीज गुड्स बैक टू द मैन्युफैक्चरर। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इट इज़ अ यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट दैट फैक्ट इज सो इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट गोज डायरेक्टली इन टू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। और यहाँ पे क्या हुआ है, कंसेंसस नहीं बन पाया, कंसेंट नहीं बन पाया, तो ये पूरी अग्रीमेंट ही क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। जब वो वॉइड है तो इसके पास ऑनरशिप नहीं आई, इसके पास नहीं आई, तो वो नीचे भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता टू दिस थर्ड पर्सन, सो ही हैज़ टू रिकवर दोज गुड्स बैक। सो गाइज आई होप आपको समझ आए कि व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी व्हेन पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इट इज़ वॉइड, ध्यान रखना वो वॉइड होती है, वॉइड अब इनिशियो। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी व्हेन पार्टीज आर एट सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब होता है व्हेन पार्टीज आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर, फेस टू फेस वो खड़ी हैं। अब इसके लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे क्वाइट सिमिलर, मैं आपको बताऊंगी डिफ्रेंसिएशन क्या है। केस हमारे पास है फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स 1919। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ शॉप ऑफ जूलर्स, जूलर्स के शॉप पे एक इंसान जाते हैं बट उन्होंने अपना रियलिटी में जो सही नाम था वो नहीं बताया। जूलर्स के पास वो गए, उनको एक चेक पकड़ाया, चेक पकड़ाने के बाद उनको कहा कि आई विश टू बाय अ रिंग, और अपने आप को मिस्टर जी बताया, जॉर्ज बॉलग। ही अगेन मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जॉर्ज बॉलग, बहुत ही रिप्यूटेड पर्सन, मिस्टर जॉर्ज अपना नाम बताया। और अब इनको पता है कि इस इंसान का ही इज सच अ रिप्यूटेड पर्सन, तो इस इंसान का जो मिस्टर जॉर्ज, इनका चेक डिसऑनर नहीं हो सकता। तो इस जूलर्स की फर्म ने क्या किया, इनको रिंग दे दी और इनसे चेक ले लिया, और इसने कहा था मिस्टर जो भी पर्सन थे हु मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जॉर्ज को इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ का बर्थडे है द नेक्स्ट डे, इसीलिए मुझे इमीडिएटली रिंग चाहिए, आप चेक ले लो, मुझे रिंग दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एड्रेस बताओ। एड्रेस जो इन्होंने बताया इट मैच्ड इन द डायरेक्टरी, जो एड्रेस था वो मैच किया विद मिस्टर जीज एड्रेस, मिस्टर जॉर्ज का जो एड्रेस था उस एड्रेस के साथ ये एड्रेस मैच कर गया। और इस इंसान ने क्या किया, चेक दिया जूलर्स को और वो रिंग ले आए, जबकि चेक बाद में डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, बिफोर दिस पर्सन फॉर्म ऑफ जूलर्स को डू एनीथिंग, इस इंसान ने क्या किया, जो हु मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जॉर्ज, वो जाते हैं पॉन ब्रोकर्स के पास और अपनी रिंग को प्लेज कर देते, गिरवी रख देते हैं और 350 पाउंड्स ले आते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, रिंग ली और उसको आगे प्लेज कर दिया टू द नियरेस्ट पॉन ब्रोकर्स, और उसके बाद 350 पाउंड्स लेके गायब हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रेस। अब यहाँ पे जो जूलर्स की फर्म है उन्होंने क्या किया, स्यू किया इस इंसान को, पॉन ब्रोकर्स को, कि हमारी यहाँ पे जो रिंग है उसको वापस किया जाए। और इस इंसान ने क्या किया, यहाँ पे अपने आप को मिस्टर जी बताया। जब पॉन ब्रोकर्स के पास उन्होंने रिंग प्लेज करी और 350 पाउंड्स लेके आए, उनको मिस्टर एफ बता दिया, आई एम सो एंड सो पर्सन मिस्टर एफ। अब यहाँ पे जूलर्स के शॉप ने क्या किया, इन्हें स्यू किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इट इज़ नॉट वॉइड। इस केस के और इस केस के फैक्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं। इसमें क्या था कि इट इज़ वॉइड और उनको उनकी गुड्स रिकवर हो गई थी फ्रॉम दिस थर्ड पर्सन, बट यहाँ पे जूलर्स कुड नॉट डू एनीथिंग। ये क्या था, वॉइडेबल था। इसका रीज़न क्या है, ये वॉइड नहीं है बट वॉइडेबल है। इसका रीज़न कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट बोलता है कि सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों केसेस में मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी हुआ, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी डेफिनेटली हुआ, बट हियर पार्टीज वर एट डिफरेंट प्लेसेस और यहाँ पे पार्टीज आर एट सेम प्लेस। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है, गाइज कोर्ट प्रिज्यूम्स, कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज करता है कि जो इंसान आपके सामने खड़ा है, यानी कि जब जूलर्स के पास ये इंसान खुद आया था हु मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जॉर्ज, तो कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पे तो आपको पार्टीज का नहीं पता बिकॉज दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, वो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो इंसान खड़ा है, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपके सामने खड़ा है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कंसेंसस एड आइडम नहीं हुआ एज इन दिस केस। यहाँ पे जो इंसान आपके सामने खड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि आप भी उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो भी इंसान आप ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इट मीन्स आप कन्फ्रंट कर रहे हो एक दूसरे को और आप एक दूसरे के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। इट मीन्स यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कंसेंसस एड आइडम नहीं है या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, दो ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जी। इट मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट रखी, फॉल्स स्टेटमेंट, और यहाँ पे इसने क्या किया, फ्रॉड कमिट किया। गाइज मैंने कहा था फ्रॉड के लिए हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, वो ये वाला केस लॉ है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्लॉज 1 फॉल्स स्टेटमेंट रखी है इस इंसान ने हु मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी मिस्टर जॉर्ज, और यहाँ पे इस जूलर्स की फर्म के साथ फ्रॉड हुआ है। और जब किसी भी इंसान के साथ फ्रॉड होता है वाया एनी मोड, किसी भी तरीके से फ्रॉड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है बट वॉइड नहीं होता। यहाँ पे तो कंसेंसस एड आइडम ही नहीं था, इसीलिए ये वॉइड था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, बट यहाँ पे कंसेंसस एड आइडम है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलते कि जो आपके सामने खड़ा है आप उसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपके साथ यहाँ पे कंसेंसस नहीं हुआ, दोनों पार्टीज का मेंटल लेवल मैच हो गया था, आप एक दूसरे के साथ ही करना चाहते थे कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम क्या थी कि इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कमिट किया था आपके साथ, सेक्शन 17 क्लॉज 1 बाय फॉल्स स्टेटमेंट। इन्होंने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट भी किया और फ्रॉड भी किया, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बट वॉइड नहीं है। क्योंकि ये वॉइड नहीं है तो आप इस इंसान को, पॉन ब्रोकर्स को नहीं बोल सकते कि हमारी रिंग हमें वापस करो। सो गाइज आपको समझ आया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंसेंसस नहीं हो पाता। हमने बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी देखा था
कि दोनों पार्टीज बायलेटरल, दोनों पार्टीज आर एट मिस्टेक एज टू सर्टन फैक्ट्स, और वो फैक्ट्स बहुत ही मटीरियल फैक्ट्स होते हैं, और बायलेटरल मिस्टेक में दोनों पार्टीज का कंसेंसस नहीं बनता। और यहाँ पे भी हम कंसेंसस के ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्या है कि सिर्फ ओनली अ सिंगल पार्टी इज एट मिस्टेक एज टू सर्टन फैक्ट्स। और ये तभी हम जनरल रूल की एक्सेप्शंस में स्टडी करते हैं कि यहाँ पे भी सिंगल पार्टी वॉज इट मिस्टेक, बट यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था सिंस पार्टीज वर एट डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप एक पार्टी के आमने सामने खड़े हो, आप उसको देख के भी नहीं समझ पाए कि वो इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, इट्स अ मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट। आप उसको देख के भी समझ नहीं पाए, उसकी जिस तरीके से वो आपके सामने खड़ा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस को भी आप देख के नहीं समझ पाए कि वो इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ये मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट है। और जब एक इंसान आपके सामने खड़ा है, यू हैव टू मेक 100% इंक्वायरी, आपको खुद ही इंक्वायर करना है कि उस इंसान का स्टेटस है क्या, उस इंसान के वेयर अबाउट्स क्या हैं। यहाँ पे ही वॉज नॉट इन रियलिटी मिस्टर जॉर्ज, जो उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया वो चलेगा बिकॉज पार्टीज आर ए डिफरेंट प्लेस, लेकिन यहाँ पे जब एक इंसान आपके सामने खड़ा है, सो यू हैव टू मेक 100% इंक्वायरीज अबाउट हिज स्टेटस, अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, कि वो कहाँ का इंसान है। तो यहाँ पे वो आपके साथ फ्रॉड कर गया, इट इज़ वॉइडेबल बट सर्टनली नॉट वॉइड, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कंसेंसस ही नहीं बना, वो हुआ, और यहाँ पे आप ही की थोड़ी बहुत गलती थी कि आपने इंक्वायरी नहीं करी, और ये मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट है, आप उसको देख के भी समझ नहीं पाए कि उस इंसान ने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ जूलस रिंग नहीं ले सके इस इंसान से, उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। सो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी को भी हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी व्हेन पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस, mistake of identity when parties are at same place, which is also known as mistake of attribute, to be more precise, is it? गाइज सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको कहा था हम रीड करेंगे, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। कई बार क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उसी में मिस्टेक होती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट मैटर इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट गोज डायरेक्टली इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो भी वॉइड होगा। बट अगैन वो डिपेंड करता है, इसको हम आगे 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इज द मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 पार्टीज दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, बट उन्हें पता ही नहीं कि जिस चीज़ के ऊपर, ओवर द थिंग, जिस चीज़ के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है। उसको हम बोलते हैं रेस एक्सटिंक्टा। इट इज़ कॉल्ड रेस एक्सटिंक्टा विच मीन्स द थिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, वो चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती है। आई हैव गिवन यू ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ बुलडॉग, हमारी फेवरेट एग्जाम्पल। उसमें हमने क्या देखा था कि 2 पार्टीज दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर अराउंड 8:30 वो मीटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। एक इंसान ने दूसरी पार्टी को अपना डॉग बेचना है। अब क्या हुआ, 8:30 वो मीटिंग करने लगते हैं, 9 बजे वो मीटिंग करके ख़त्म उठते हैं। विद इन दैट हाफ एन आवर जब वो मीटिंग करने लगे थे, उस टाइम पे बुलडॉग वॉज प्रेजेंट, बुलडॉग वहीं पे था, जो इंसान बेचना चाहता है वो अवेलेबल था उसका डॉग। बट विद इन दैट हाफ एन आवर व्हाट हैपेंड इज कि दैट डॉग मेट विद एन एक्सीडेंट। अब जिस चीज़ की सेल एंड परचेज हो रही थी, उस चीज़ की जब एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंपॉर्टेंस है? नो माई फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आप क्या कहोगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज वॉइड एब इनिशियो, जब से वो शुरू हुआ तब से ही वो वॉइड है। तो यहाँ पे पार्टीज हैव नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जो मर्जी उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन किया, जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टीज आर एट अगर किसी ने एडवांस पेमेंट कर दी है तो वो उनको रेस्टिट्यूशन करना होगा, वापस देना होगा। पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि व्हेन देयर इज अ मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप डॉग को लेन देन की आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट इन रियलिटी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म होते हो तो आपको पता लगता है, इट इज़ डिस्कवर्ड, आपको बाद में पता लगता है कि वो डॉग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीज वर एट मिस्टेक, उन्हें नहीं पता कि उनका डॉग एग्जिस्टेंस में नहीं है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग वो क्या था, वॉइड था, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। और अगर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं रेस एक्सटिंक्टा, द थिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। सेकेंड मिस्टेक आपको लग सकती है, हम सब्जेक्ट मैटर को ही डिस्कस करें, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट इज मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज वॉइड, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है।
अब सेकंड हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि जब पार्टीज का कंसेंसस नहीं बन पाता, सब्जेक्ट मैटर को लेके कंसेंसस नहीं बन पाता। ये भी एग्जांपल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सपोज ए एंड बी, देयर आर टू पीपल, ए इज द ओनर ऑफ 2 कार्स, ए के पास 2 कार्स है, मारुति एंड सेंट्रो कार। अब यहाँ पे जो है ए विशेस टू सेल हिज मारुति कार टू बी, बट बी विशेस टू बाय हिज सेंट्रो कार। ए को लगता है कि मैं मारुति कार बेचने को तैयार हूँ और बी को लगता है कि ए अपनी सेंट्रो कार बेच रहे। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसेंसस नहीं बन पा रहा पार्टीज का। तो जब हम बात करते हैं कि देयर इज अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक है, डेफिनेटली मिस्टेक है, क्योंकि वहां पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा। सब्जेक्ट मैटर पहली एग्जांपल में हमने देखा कि इट इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो वॉइड है। सेकेंडली अगेन ये भी आप समझ पा रहे हो कि जब देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन द मेंटल लेवल ऑफ द पार्टीज एज टू द सब्जेक्ट मैटर, तो अगर वहां पे डिफरेंशिएशन है तो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो वहां पे भी वो वॉइड होगा। थर्ड क्या होता है, देयर इज अ मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। गाइस ध्यान रखना, इसके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट हमने किया मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज वॉइड। सेकंड इज द मिस्टेक व्हेन पार्टीज आर एट दे आर नॉट एट कंसेंसस एज टू द सब्जेक्ट मैटर। एक इंसान कुछ बेचना चाहते, दूसरा कुछ और खरीदना चाहते, तो क्योंकि वहां पे भी कंसेंसस नहीं बनता, एज पर सेक्शन 13 इट इज वॉइड एब इनिशियो अगेन। थर्ड इज द मिस्टेक about the subject matter but about the quality of subject matter, क्वालिटी में फर्क होता है गाइज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इट इज नॉट वॉइड बट परफेक्टली वैलिड। कंफ्यूज होने की जरूरत है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स को यहाँ पे समझना है, नथिंग एल्स। अब क्या होता है, सपोज हम यहाँ पे केस लॉ डिस्कस करते हैं सबसे पहले, विच इज लीफ वर्सेज इंटरनेशनल गैलरीज 1950। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन, एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक पोर्ट्रेट खरीदा। अब उसको लगा कि जो पेंटिंग है, ये जो पोर्ट्रेट इट इज़ ऑफ अ रिनाउंड आर्टिस्ट, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड आर्टिस्ट की पेंटिंग है, उसने वो पेंटिंग खरीद ली। अब यहाँ पे उस इंसान के साथ फ्रॉड कमिट नहीं किया, जो सेलर है उसने बायर के साथ फ्रॉड कमिट नहीं किया, बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस इंसान ने दूसरे इंसान को पोर्ट्रेट दे दिया और दूसरे इंसान ने पोर्ट्रेट, वो पेंटिंग खरीद लिया, बिलीविंग इट टू बी वन ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाद में उसको पता लगता है, आफ्टर फ्यू इयर्स जो बायर है उसको पता लगता है कि यार ये पेंटिंग तो एक रेप्लिका है, डुप्लीकेट पेंटिंग है, विच इज़ नॉट ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट, अभी रिसेंटली बनाई है, बहुत पुरानी पेंटिंग नहीं है, इंस्टेड इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ द अर्लियर, पुरानी सेंचुरीज की पेंटिंग की एक रेप्लिका है, एक कॉपी है। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइज, अब यहाँ पे भी क्या है, देयर इज a differentiation mistake as to the quality of the subject matter। अब ये चीज़ कोर्ट ने कहा कि इट इज़ परफेक्टली वैलिड। ये वैलिड क्यों होती है, आप ये देखो, कोर्ट कहते हैं कि देयर इज़ नो मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आपने पोर्ट्रेट खरीदना था, सामने वाले ने आपको पोर्ट्रेट बेचना था, तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ पोर्ट्रेट लेन देन की बात कर रहे हो, सो देयर इज़ नो मिस्टेक एज टू द, यहाँ पे ध्यान रखना, देयर इज़ नो मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आइडेंटिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी को लेके फ़र्क है। अब ये क्वालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी पूरी एग्रीमेंट को ही वो डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि देयर इज सर्टनली अ कंसेंसस एज एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम 100% है एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका क्वालिटी कि आपकी पूरी एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। जो आप खरीदना चाहते थे वही सामने वाला बेचना चाहता था, आपने कहा पोर्ट्रेट दो, उन्होंने आपको पोर्ट्रेट दिया। इट मीन्स जो आप खरीदना चाहते थे और जो वो आपको बेचना चाहता था, उसमें आप दोनों पार्टीज का कंसेंसस था। आइडेंटिटी में नहीं फ़र्क, आइडेंटिटी इज द पोर्ट्रेट इटसेल्फ, बट सर्टनली टू द क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी में फ़र्क है, एंड दैट क्वालिटी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो आपकी पूरी एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। तो कोर्ट ने कहा कि देयर इज सर्टनली अ कंसेंसस एड आइडम एज टू द सेल एंड परचेज ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। जिसको आप खरीदना चाहते थे वही सामने वाला बेचना चाहता था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों के बीच में कंसेंसस ही नहीं हुआ, कंसेंसस तो था, बट सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में फ़र्क आया, एंड क्वालिटी इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ एन एलिमेंट कि आपकी पूरी एग्रीमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पे अगर आपको मिस्टेक लगती है एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो इट इज़ नॉट वॉइड बट परफेक्टली वैलिड, तो वो वैलिड रहेगी। फोर्थ इज द मिस्टेक अबाउट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के टाइटल में अगर आपको फर्क दिखता है तो वो भी चीज़ क्या होती है, वॉइड होती है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ, फिर आपको समझ आएगा। केस लॉ इज कूपर वर्सेस फिब्स 1867। गाइज इसमें क्या हुआ था, इस केस में देयर वाज एन अंकल, एक अंकल थे, उसका नेफ्यू था। अंकल के पास ही वॉज द ऑनर ऑफ अ फिशरी, अंकल के पास फिशरी थी। अब इन्होंने क्या किया, आफ्टर हिज डेथ इसने क्या किया, पहले क्या हुआ कि अंकल से ना इस इंसान ने, उसके नेफ्यू ने उनकी फिशरी को लीज पे ले रखा था, रेंट पे ले रखा था।
अब व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे दिस पर्सन, हिज अंकल, ही डाइड, इनकी डेथ हो जाती है। अब इस इंसान को लगा कि डेफिनेटली इनकी जो फिशरी है उसका राइट किसके पास जा चुका है, अंकल की डॉटर के पास जा चुका है। तो इस इंसान ने अगेन फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया विद हिज डॉटर और उसको कहा कि मैं ऑलरेडी रेंट पे ले चुका था, वो लीज पे ले चुका था अपने अंकल से। अब अपनी कज़न के पास वो जाता है, उनकी डॉटर के पास, और बोलता है कि मुझे फिर से आप इस फिशरी को लीज पे दे दो। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंड इज, इन द बैकड्रॉप क्या हुआ कि इस अंकल ने इन फिशरी राइट्स को अपनी डॉटर के नाम करने की बजाय अपनी विल में ये लिखा था कि ये फिशरी राइट्स उनके नेफ्यू के पास जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे, फिशरीज, सब्जेक्ट मैटर इज द फिशरीज। उसका टाइटल रियलिटी में किसके पास है, इस इंसान के पास है, लेकिन इसको नहीं पता, उसको मिस्टेक लग गई, उसको लगा कि वो फिशरीज का टाइटल अंकल की डेथ के बाद उनकी डॉटर के पास आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखो, अब ये इंसान खुद ही की लैंड को तो लीज पे नहीं ले सकता ना, व्हेन ही हिमसेल्फ इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड, बट ही इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और उसने क्या किया, अपनी कज़न के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे लीज पे दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज़ वॉइड, वो बिल्कुल वॉइड हो जाती है क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं रेस सुआ। रेस सुआ का मतलब होता है व्हेन परचेजर हिमसेल्फ इज द ऑनर ऑफ दैट थिंग, द थिंग विच ही इज कॉन्ट्रैक्टिंग अपॉन इज द वन विच ऑलरेडी बिलोंग्स टू द परचेजर। वो परचेजर को ही बिलोंग करती है बट इसको नहीं पता, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। सो व्हेन यू हैव अ मिस्टेक अबाउट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर फिशरीज है, इसके टाइटल को लेके आपको गलती लगी, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है बट आप किसी और इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि वो चीज़ मुझे दे दो लीज पे, तो वो क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इट इज़ वॉइड। ये भी वॉइड एब इनिशियो होती है। तो गाइज हमने अब सब्जेक्ट मैटर के टॉपिक को डिस्कस किया 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज a mistake as to the existence of the subject matter which is res extincta, यानी कि the thing no longer exists and hence void. Second is जब पार्टीज का मेंटल लेवल यानी कि उनका जो कंसेंसस एट आइडम है वो नहीं बनता, देयर इज डिफरेंशिएशन इन द सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ। दोनों के माइंड में कुछ और है, एक कुछ और बेचना चाहता है, दूसरा इंसान कुछ और खरीदना चाहता है, तो कंसेंसस नहीं बना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, वो भी क्या रहेगी, वॉइड। बट थर्ड इज दी mistake as to the quality of the subject matter. Quality is not so strong enough an element कि वो आपकी पूरी अग्रीमेंट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इट इज परफेक्टली वैलिड एज इन दिस केस, क्योंकि देयर इज सर्टनली अ कंसेंसस एट आइडम एज टू द आइडेंटिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर। आइडेंटिटी में प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट्रेट लेना था और पोर्ट्रेट ही देना था, सिर्फ क्वालिटी में फर्क है। एंड फोर्थ इज द मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच इज अगेन वॉइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको हम बोलते हैं नॉन एस्ट फैक्टम। नॉन एस्ट फैक्टम का मतलब होता है कि इट्स नॉट माई डीड। कई बार व्हाट हैपन्स इज कि क्या होता है कि आपसे अब यहाँ पे ना बेसिकली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो ये वाला पॉइंट है ये आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम ओल्ड पर्सन, सम ब्लाइंड और एन इलिटरेट पर्सन। उनके केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत बार व्हाट हैपन्स इज कि एक इलिटरेट पर्सन को या ओल्ड ब्लाइंड पर्सन को, उस इंसान को क्या धोखे में रखा जाता है और उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स या थंब इम्प्रेशंस ले लिए जाते हैं ऑन सर्टन डॉक्यूमेंट्स, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होती जिसको वो अपना कंसेंसस देना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि एक मॉर्टगेज डीड है, आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दो, बट उनको मॉर्टगेज डीड बोल के गिफ्ट डीड दे दिया जाता है या सेल डीड दे दिया जाता है। एक जगह तो आप एक इंसान को बोल रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी को सिर्फ गिरवी रखा जाएगा और आप उनसे थंब इम्प्रेशंस ले लेते हो ऑन सम अदर डॉक्यूमेंट्स विच एक्चुअली हैपन्स टू बी अ गिफ्ट और अ सेल डीड। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पे भी कंसेंसस एट आइडम नहीं होता, उनके जो थंब इम्प्रेशंस है ना वो उनकी मेंटल लेवल को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट को वो अपना थंब इम्प्रेशन देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट इन रियलिटी नहीं है जो उन्होंने जहाँ पे थंब इम्प्रेशन दिया। इट मीन्स उनका थंब इम्प्रेशन इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जिसको वो देना चाहते हैं। आप एक इंसान को बोलते हो कि आप मॉर्टगेज डीड है और उनका थंब इम्प्रेशन लेते हो कहाँ पे, सेल डीड या गिफ्ट डीड पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहली बात तो आप फ्रॉड कमिट कर रहे हो। दूसरा ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसी है कि बंदा बोलते कि इट्स नॉट माय डीड, मेरी ये डीड नहीं है। यहाँ पे जो मैंने अपने माइंड में सोचा था वाज अ मॉर्टगेज डीड एंड इट इज़ दैट डीड जिसको मैंने अपने थंब इम्प्रेशंस दिए थे। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, उस इंसान का कंसेंसस नहीं बना। अगर कंसेंसस नहीं बना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वैलिड कंसेंट ही नहीं बना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। तो गाइज ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत रिलेटेड हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हर एक वीडियो को देखो,
आपको बहुत पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, बट आप ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ इसमें होता क्या है। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। वॉइड क्यों है, बिकॉज अगेन कंसेंसस आइटम नहीं है ना। गाइस बिफोर लीविंग मैं इसको फिर से एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने आज देखा यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, उसके बाद हमने केस लॉ डिस्कस किया था, फिशरी राइट्स वाला, यूनियन ऑफ इंडिया वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि एज अ जनरल रूल व्हाट हैपेंस इज कि अ यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब होता है इट इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि वन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। आप अपनी गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते। बट इसकी एक्सेप्शंस आती हैं जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, बट अगैन डिस्पाइट दैट फैक्ट या तो वो वॉइड होती है या वो वॉइडेबल होती है। अब वो एक्सेप्शंस क्या थी, हमने दो एक्सेप्शंस डिस्कस करी थी। पहली एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी जहाँ पे एक इंसान के साथ फ्रॉड कमिट होता है। अगर किसी इंसान के साथ फ्रॉड कमिट हुआ, चाहे वो यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही क्यों ना हो, वो वॉइडेबल होगी। तो उसमें आप ये केस लॉ को यूज कर सकते हो। सेकंड एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी जहाँ पे पार्टीज का कंसेंसस नहीं बन पाता। कंसेंसस नहीं बनेगा तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 कंसेंट नहीं बनेगा। कंसेंट नहीं बनेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, इट मीन्स मिस्टेक हो गई। अब उसमें मैंने आपको कहा था कि इस सेकेंड एक्सेप्शन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, second is the mistake as to the subject matter, third is the mistake as to nature of transaction. Identity को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, when parties are at different places and when parties are at same place। तो यहाँ पे ये चीज़ void थी और ये चीज़ voidable थी। उसके बाद हमने रीड किया था सब्जेक्ट मैटर में जब मिस्टेक होती है, तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिस्कस किया था। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर व्हेन पार्टीज आर नॉट एट कंसेंसस विद ईच अदर एज टू द सब्जेक्ट मैटर इन फ्रंट ऑफ देम। थर्ड इज एज टू क्वालिटी एंड फोर्थ इज द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक लग जाती है। और फिर जो हमने इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था दैट वाज मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि जो आपने ट्रांजेक्शन करी है उसकी वो नेचर नहीं है जो आपको लगा था, तो उसकी नेचर क्या रहेगी, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि यहाँ पे भी कंसेंसस नहीं बन पाया। आई होप गाइस आपको समझ आया। हमने बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ये तीनों टॉपिक्स इन डेप्थ क्लियर करें। इट मीन्स वी आर डन विद सेक्शन 20, 21 and 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड विद दिस we are finished with all the important essentials of a free consent। हमने कहा था कि free consent must be free from 5 things। तो वो क्या थी, coercion था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, and today we are done with all those important points। And in my upcoming videos I'll be coming up with more important sections related to Indian Contract Act। Interestingly इसी तरीके से करेंगे। Thank you so much guys, please subscribe to my channel right now, stay tuned for more videos, keep learning, stay safe and bye bye।